Previous class I had taught you about the Krebs what you call EMP pathway. EMP pathway says that how the glucose is added, and with the help of ATP, the energy of 2 ATP, it is charged, and then it is broken into a 3 carbon compound, that is pyruvates. And during this course 4 ATPs are produced. Since 2 ATPs are spent and 4 ATPs are produced, so the net benefit are of 2 ATPs. So at the end of the glycolysis or EMP pathway, what we had net, that is 2 ATPs and 2 pyruvates or pyruvic acid and 2 NADPH2. क्या क्या चीजें मैं इधर लिख देता हूँ. 2 ATP का नेट बेनिफिट अपन को मिला, 2 pyruvates मिले and 2 what you call NADH2. ठीक है. So these are the product we got, but there is still energy available in these two molecules. इसमें और इसमें एनर्जी है. तो फाइनली वी हैव टू गेट ATPs. वी हैव बॉडी हैज नथिंग टू डू विद द pyruvate. Rather pyruvate cannot be collected in the body because they are acid, and if they are acid it will keep on collecting in the cell, then it will lower the pH and it will create other type of problem. So finally we have to convert them into the carbon dioxide and water, which are least harmful substance, and they can be diffused out from the body time and time again. So that is the aim. ठीक है. So that is done in the aerobic respiration, and aerobic respiration is taking place in mitochondria. ठीक है. Let us see. देखते हैं 14.4 में क्या लिखा. एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं पूरी उसको नहीं पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन, मैं आगे पढ़ाता हूँ. दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन. इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड जो है, दैट टेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ COA, कोएंजाइम A, and it releases 2 hydrogen. Now hydrogen are released in the form of hydrogen ions. Hydrogen ions are very active. ठीक है. हाइड्रोजन itself is active, but hydrogen ions are all the more active. So hydrogen ions cannot simply release into the cytoplasm. There should be some molecules which immediately grab it, which should be immediately taking it. So that molecule जो है वो यहाँ पे क्या है, NAD है. NAD will take this hydrogen and it will change into NADH2, है ना, and 1 carbon dioxide will release, and the 3 carbon pyruvic acid will change into 2 carbon compound acetyl coenzyme. So this is डीकार्बोक्सिलेशन. क्या है इसके अंदर, पायरुवेट्स प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD will change into acetyl coenzyme A, और साथ में क्या निकलेंगे अपने पास, NADH2. ठीक है. सो एंड कोएंजाइम उसके साथ में ऐड हो गया. So this is the starter molecule which will be used in the Krebs cycle or TCA. सर ठीक है. So ये अपना बना. तो अब ये जो है TCA साइकिल में या Krebs साइकिल में जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द Krebs साइकिल. तो ये एक्चुअली Krebs साइकिल की बिगिनिंग थी. हम Krebs साइकिल पढ़ते हैं. And yesterday's class I explained to you what is the difference between pathway and a cycle. Pathway is starting from one end and ending to something else. ठीक है. वो जो end product है वो वापस उसमें participate नहीं कर रहा है. Whereas in the cycle, the process from where it starts and it ends up there only. तो हमारा ये जो है वो Krebs cycle है. शुरू करते हैं यहाँ से. ये हमारा pyruvate आया. Pyruvate which came from the side glycolysis. That जो अभी मैंने लिखा था वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी. Coenzyme A, it will take, NAD it will take, and NAD will change into NADH2. तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है. और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया. So 1 carbon is reduced. It was 3 carbon compound, now it will change into a 2 carbon compound, जिसका नाम है acetyl coenzyme. ठीक है. We have got oxaloacetic acid. OAA. This is the 4 carbon compound. 4 carbon compound take 2 carbon compound and it change into citric acid. Citric acid will change into isocitric acid.
So citric acid will change into a 5 carbon compound alpha ketobutyric acid. This 4 carbon compound will change into succinyl coenzyme. So coenzyme A इसके अंदर घुसेगा यहाँ से, ठीक है. Then it will change into fumaric acid, fumaric and then malic acid. No, एक मिनट. Yes, malic acid and then oxalates. No, fumaric लिखा भी नहीं, चलो हटा दो. ठीक है, यहाँ malic acid है सब कुछ. Malic acid itself is 4 carbon compound and then it will change here. Now यहाँ पे हमारे पास एक NADH2 आया, एक NADH2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा. Not here, to hydrogen are released in the next step. NADH2 आपके बुक में आइसोसिट्रिक एसिड नहीं लिखा, कीटोब्यूटारिक एसिड से यहाँ आ रहे हैं, तब वापस से एक NAD will change into NADH2. यहाँ पे जो है वो एक GTP में चेंज हो रहा है एंड कोएंजाइम में वापस बाहर आ जाएगा. द कोएंजाइम विच इज एडेड एंड हियर FAD will change into FADH2. ठीक है, 1 2 3 एक NADH2 खा रहे हैं, सक्सेनाइल टू दिस FAD एंड मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक टू यहाँ पे. ओके, NADH2 NAD and here सक्सेनाइल कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड वाला एक स्टेप है. and then it will change into malic acid and इस स्टेप के अंदर FAD will change into FADH2. So this is the all that is Krebs cycle. And now in Krebs cycle, what you can say, what you are getting is NADH2 here, you are getting NADH2 here, you are getting NADH2 here, you are getting NADH2 here, and FADH2 here, and एक GDP molecule. GDP is nothing but it is equal to ATP. Adenosine triphosphate. This is guanosine triphosphate. Adenosine is one type of nitrogen base. Guanine is another type of nitrogen base. ठीक है, so इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Its energy will be just equivalent to the ATP. So we can consider it as a ATP also. So in the Krebs cycle, only one ATP is formed. In fact, rest all these are in the form of NADs. And carbon is released in this step. Carbon is released in this step because ये 6 कार्बन वाला है, ये 5 कार्बन में चेंज हो रहा है यहाँ पे कीटोब्यूटारिक एसिड. So one carbon dioxide is released here and another carbon dioxide is released here. ये 5 कार्बन से 4 कार्बन में चेंज हो रहा है. So ये दो जगहों पे तो आपने 3 कार्बन निकल गए. देखिए, एक कार्बन यहाँ निकल गया, एक कार्बन यहाँ निकल गया, एक कार्बन यहाँ निकल गया. 3 कार्बन वाला कंपाउंड हम लाए थे पायरुविक एसिड, 3 कार्बन निकल गए. ठीक है, एंड इट्स एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ what 1 2 3 and 4 NADH2 and 1 FADH2 and 1 GTP. ठीक है, तो at the end of the Krebs cycle we got these are the products. ठीक है, ATP तो कुल मिला के हमारे पास कितने बने अभी तक, अगर आपको याद हो ATP कितने बने. हमने पायरुविक क्या कहते हैं Krebs नॉट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने ATP बनाए थे. कितने बने थे? 2 ATP. और अब दूसरे ATP कहाँ बन रहे हैं? वो यही बन रहे हैं. बाकी कहीं पे भी हमने ATP का नाम नहीं लिखा है. सो हमारा जो भी सब्सटेंस है एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर NAD और FAD. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. हियर यू सी इन द ऑन द पेज नंबर 233, figure number 14.4. This is electron transport chain. Now just for the sake of understanding मैं आपको बता देता हूँ कि ये Krebs cycle हो कहाँ. Where is this Krebs cycle taking place?
This is very important to understand where the Krebs cycle is taking place. Krebs cycle take place in mitochondria, whereas the glycolysis was taking place in cytoplasm. This oxidative decarboxylation was taking place in cytoplasm. ये जो प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. कहाँ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? If you remember, this is the mitochondria and it has got that inner wall and the outer wall. The process of Krebs cycle is taking place here. Krebs cycle is taking place here. So all the enzymes responsible for Krebs cycle are present here. ठीक है. अब इससे क्या हो जाएगा? At the end of the Krebs cycle, what you are getting is NADH2 and FADH2. खूब सारे इकट्ठे हो गए हमारे पास. खूब सारे NADH2 हैं और खूब सारे FADH2 हैं. But body as a whole cannot use FADH2 और NADH2. बॉडी क्या यूज करेगी? बॉडी केवल एटीपी यूज करती है. हमने कल की क्लास में पढ़ा था द एनर्जी करेंसी इज एटीपी, नॉट एनएडीए और एफएडीए और एनीथिंग एल्स. सो क्या करना है हमको? वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनएडीए और एफएडीए इनटू एटीपी. ठीक है. तो उसको करने के लिए क्या करना है? देखिए यहाँ अगर आप ये चेन देखेंगे ईटीसी. ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कहाँ पर हो रहा है ये? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज इनर मैट्रिक्स and this is intermembrane space and this is inner membrane. You can see in the diagram ये तीन जगह दिखा रखी है. सबसे राइट में मैट्रिक्स दिखा रखा है, फिर ऊपर दे रखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और उसके बाद दे रखा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज दिस मेम्ब्रेन दिस मेम्ब्रेन का गैप. दिस इज इनर मेम्ब्रेन दैट इज वन लिखा हुआ है mitochondrial inner membrane and this is the matrix. So the process of Krebs cycle is taking place in the matrix, and in matrix what we got lot of FAD and NAD, FADH2 and NADH2. तो फिर क्या होता है? यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में क्या है? देखिए ये FMN मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पे. FMN के पास जैसे NADH2 आता है तो वो NADH2 को तोड़ देता है. इट ब्रेक्स द NADH2 एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन. सो सपोज दिस इज द प्लेस. यहाँ पर हमारा FMN है. यहाँ जैसे NADH2 this will be broken into NAD और इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे. Now hydrogen will be broken into hydrogen ions, 4 hydrogen ions and 4 electrons. Hydrogen will be broken into protons and electrons. Protons are hydrogen ions. हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? प्रोटॉन ही बचा. न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है. So we can even call them as a proton or we can call them as a hydrogen ion. So hydrogen ion अंदर भेज दिए in the intermembrane space and electrons are now transferring through a series of electron acceptors. यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स देख लीजिए आप. FMN के बाद FeS के पास गया, FeS के बाद में यूबिक्विनोन के पास गया, यूबिक्विनोन के बाद यूबिक्विनोन हाइड्रोजन के पास चला गया. Then again it has got that much of energy that it can take 2 more protons from here and throw here. ठीक है. यहाँ पे 4 के काउंट्स में लिखे हैं, वैसे 2 के काउंट्स में होते हैं. तो 2 प्रोटॉन यहाँ, 2 more proton here and 2 more proton it will be taking at the third place, that is the down. तो मैं आपको ये पूरी चेन रटने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ और न मैं उसको पूरा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. What I have to concentrate is that is if we are using one molecule of NADH2, it can throw 3 pairs of protons into the intermembrane space. कहाँ फेंक रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. FMN में से उसने 1 पेयर फेंका, इसने 2 पेयर बता रखे हैं लेकिन वो एक्चुअल 1 पेयर होता है. उसने 2 मॉलिक्यूल के लेके करे. फिर उसके बाद साइटोक्रोम 3 जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B के साथ में से उसने 2 प्रोटॉन फेंके हैं और फिर जो तीसरे नंबर पे देखा है वहाँ पे भी है ना. तो 3 जगहों पे इसने 2 पेयर प्रोटॉन्स बाहर फेंके. अगर हम FADH2 यूज कर रहे हैं, if we are using FADH2, so FADH2 can throw only 2 pair of protons, where the second one and the third one. First FMN वाला वो नहीं करेंगे. ठीक है. So FADH2 can throw only 2 pairs of protons, whereas NADH2 can throw 3 pairs of protons. इतना याद रखिए आप, हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. When we use NADH2, it throws 3 pairs of hydrogen ion to the intermembrane space, and when we are using FADH2, it pairs 2 pairs of hydrogen ion to intermembrane space. As a result क्या होगा?
एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनमें एनर्जी है, इनमें एनर्जी का है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हमने यूज करके प्रोटॉन्स को बाहर फेंके। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे काफी सारे H आयन इकट्ठे हो गए, there is a gradient created, there is lot of hydrogen ion here and there is less hydrogen ion or no hydrogen ion inside, क्योंकि inside जो भी hydrogen ion थे वो सारे FAD और NADH के अंदर चले गए। So here there are lot of hydrogen ions now, ठीक है। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे, देयर आर लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। Now when there are lot of hydrogen ion and there is less hydrogen ion inside, the gradient is created. So what will happen, the hydrogen ion will try to move inside, but the membrane is not permeable for hydrogen ion. Hydrogen ion के लिए membrane is not permeable. However, there are some F0 F1 particles. If you have learned about the mitochondria, mitochondria has got F0 F1 particles. Let us talk about the F0 F1 particle. This is F0 and this is F1 particle. और ये हमारा क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड ये हमारा मैट्रिक्स। So when one pair of hydrogen ion moves from here, only this is the side from where they can move in. This is the side from where they can move in. So when two protons moves from here to here, there is enough of energy which can convert one ADP and phosphate into one ATP, ठीक है। इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, दैट इज ATP चार्जिंग। तो कहाँ, जब एक पेयर प्रोटॉन मतलब 2 पेयर प्रोटॉन, तो यहाँ 3 पेयर जा रहा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू 3 ATP, एंड ये 2 पेयर को फेंक रहा है, तो इसका मतलब क्या, 2 ATP बन। सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट one NAD can make 3 ATPs NADH2 and one FADH2 can make 2 ATPs. So that's the whole count is. Now ये सारे हाइड्रोजन आयन जो अंदर आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए, ये हाइड्रोजन आयन अब क्रैब साइकिल के अंदर फाइनल प्रोडक्ट चेंज करना है, किसमें, दिस हाइड्रोजन आयंस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड what all the total fate of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ग्लाइकोलाइसिस में डाला, नीचे से पायरुवेक एसिड निकला, पायरुवेक एसिड को हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में लेकर के गए और वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड आया और एक NADH2 बना, ठीक है। फिर उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम को क्रैब साइकिल में ले गए, हमारे पास में 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP बना, ठीक है। लेकिन उसमें कोई डायरेक्टली ATP नहीं बन रहा है, नो। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकले, 2। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो पायरुवेक एसिड में थे, 1 तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनते समय निकल गए और 2 इधर निकल गए, कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल एंड सिट्रिक एसिड टू कीटोग्लूटारिक एसिड, 6 से 5 कार्बन एंड 5 to 4 कार्बन होते हुए, तो एक कार्बन निकल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का किस्सा खत्म हो गया, अब बचा वाटर। तो वाटर यहाँ बनेगा, वाटर विल बी मेड हियर, हाइड्रोजन आयंस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी देयर, दैट इज द ग्लूकोज इज एडेड, इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ the problem is we are talking about 36 ATPs, 38 ATPs, some would say even 40 ATPs. Where are those 36, 38 or 40 ATPs? तो उसका हिसाब किताब करना है, चलिए कर देते हैं हिसाब किताब ऑफ ATP using one molecule of glucose, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ ATP synthesis in aerobic respiration। देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बने इसके अंदर, 4 ATPs, खर्च कितने हो गए, 2 ATPs, नेट कितने हैं, 2 ATPs, और क्या बने थे, 2 NADH2। इसको अगर हम इस हिसाब से चलाते हैं तो 2 ATP, so we will get 4 ATP। Then decarboxylation लिख देता हूँ, what we got, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से काउंट कर रहे हैं तो 2 ही होंगे,
तो NADH2 into 2 3 ATPs, सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, ये 6 होना चाहिए, और ना 3 ATPs, तो ये हो जाएंगे 6 ATPs। देन Krebs cycle, Krebs cycle में कितने बने हमारे पास 6 NADH2 into 3 ATP, 18, 2 FADH2 into 2 ATP, that is 4 ATPs, and 2 GEP which is equal to 1 ATP each, so हमारे पास ये आ गया 2 ATPs. So all together how much are there? 6 ले लेते हैं, 6 2 8 8 14 14 और 8 22 32 32 तो 4 36 और 2 38. ठीक है, 38 ATPs आ गए यहाँ पे. 38 ATPs में से क्या होता है ना, 2 ATPs जो है, 2 ATPs जो है वो खर्च हो जाते हैं. ये NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बने इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश कर देंगे. These NADH2 were glycolysis were taking place in cytoplasm. From the cytoplasm they have to be brought into the mitochondria because all these changes are taking place in the mitochondria. तो इसमें 2 ATP खर्च हो जाते हैं, 2 ATP के बराबर, तो आप -2 ATP कर दीजिए. So the net is 36. और अगर हम केवल प्रोडक्शन की बात करें, कंजम्पशन की बात नहीं करें, एक मिनट सुनिए, आप केवल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये टोटल 40 हो जाता है. तो हम कहेंगे 1 molecule of glucose can produce 40 ATPs, out of which 2 are spent in the glycolysis and 2 are spent in transferring the NAD. तो net will be 36 ATPs. ठीक है. So there are different books, there are different people who says sir 40 बनते हैं, कोई बोलता 38 बनते हैं, कोई बोलता 36 बनते हैं, but book says nothing is guaranteed. ठीक है, आप इसको नोट करिए जितने, फिर हम बात करते हैं आगे. वीडियो मिल जाएगी आपको, मैं अपलोड करूँगा काय को टाइम इसको लेट मी. हाँ लिख. This mobile anytime start recording in the mirror image. कल तक तो सीधा करा था, हम उसको एडिट कर रहे हैं. चलिए ये हो गया है ना. नाउ लेट अस रीड द अनदर पैराग्राफ विच इज देयर, है ना. मैं आता हूँ शेयर स्क्रीन एंड दिस वाज द स्क्रीन विच यू आर शेयरिंग. सो हियर देखिए आप, ये क्या लिखा है, दैट इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट ही अकाउंटिंग के बैलेंस शीट के. अब ये क्या लिख रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक ए कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यही कर रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. वी हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशन, वी हैव टू कीप सर्टेन कंडीशंस इन माइंड, जिसको लिखा है यहाँ अजम्पशन. क्या है अजम्पशन? देखिए अजम्पशन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है. अजम्पशन नंबर 1, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे ऑफ फंक्शनिंग. जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, कल से मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, ग्लूकोज डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. अगर ये प्रोसेस इस ऑर्डर में चल रहा है, कैसे ग्लूकोज डालेंगे पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस में, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देन इट विल गो अंडर द Krebs साइकिल एंड देन इट विल गो टू द ETC एंड देन इट विल चेंज इनटू फॉस्फोराइलेशन. अगर ये सारा कुछ ऑर्डरली फैशन में चल रहा है तो ये बनेगा गारंटेड है. बट बॉडी तो बॉडी है ना, बॉडी तो बॉडी है. तो ये बॉडी में क्या है, एनी टाइम बॉडी कैन स्टॉप एनी प्रोसेस एनीवेयर. इट मे बी पॉसिबल दैट द पायरुविक एसिड बना है एंड द फर्दर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ ही नहीं, उसकी जगह उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिया और लैक्टिक एसिड बना दिया.
और इट मे बी पॉसिबल दैट कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम है और मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड और एनी अदर थिंग सिट्रिक एसिड, किसी भी चीज को बॉडी को जरूरत पड़ी तो बॉडी ने उसको विड्रॉ कर लिया। हाँ, और दुकानदार होता है, गल्ला के लेके बैठता है, सुबह कुछ पैसे लेके आता है घर से, मे बी 2000-5000 रुपये, ताकि किसी को कुछ मांगने वाला कोई सामान खरीदना होगा तो उसके बाद तो दिन भर में जो पैसा होता है उसी को रोटेट करता रहता है ना। ये थोड़ी है कि जो पैसा आया है उसको अलग रखेगा, जो पैसा घर से लाया उसको अलग रखेगा, जो देना है वो अलग रखेगा, ऐसा थोड़ी है। वो जो पैसा आया 500 रुपया, मान लीजिए किसी ने 500 रुपये का सामान खरीदा और किसी दूसरा कुरकुरे वाला आ गया, मतलब साहब आपका 200 का बिल हुआ, तो उसी में से निकाल के देगा, है ना। सो देर इज नो जैसे, तो आवर बॉडी इज ऑल्सो डूइंग दैट थिंग, वो प्रोसेस शुरू करा एंड इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट कहीं पे यूज होना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट की जरूरत पड़ गई तो वहीं से निकाल दो, ग्लाइकोलाइसिस भी पूरा नहीं हो रहा है और उसको कीटोग्लूटारिक एसिड की जरूरत पड़ी और इट रिक्वायर्ड सम अदर प्रोडक्ट, तो द प्रोसेस विल बी डिसकंटिन्यूड एनीवे। तो ये लिखा है इफ इट गोज इनटू ऑर्डरली फैशन एंड फिनिश इनटू द लास्ट प्रोडक्ट देन ओनली दिस विल बी 36 ATPs का चक्कर जो है। अदरवाइज क्या होगा, देखिए द एनएडी, दूसरी बात क्या है, द एनएडी सिंथेसाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस आर ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर व्हिच 2 ATPs आर रिक्वायर्ड। जनरली वो नहीं होते, जनरली वो वहीं यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो होंगे तभी वो 6 ATP का और बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो 30 रह जाएंगे, है ना। ये वाले जो है ये 6 ATP तो तब आएंगे व्हेन दीस NADH2 व्हिच आर फॉर्म्ड आर ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, नन ऑफ द इंटरमीडिएट पाथवे आर सिंथेसाइज्ड एनीवेयर एल्स, ठीक है, कुछ और चीज के लिए काम में नहीं लिया उसने। चौथा, ग्लूकोज इज ओनली बीन यूज्ड विद रेस्पिरेशन में सब्सट्रेट तो कैन एनीथिंग, ग्लूकोज की जगह हम कुछ और चीज भी यूज कर सकते हैं, हम तो एमिनो एसिड भी यूज कर सकते हैं, फैटी एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज दिस इज द थिंग, इफ यू यूज फैटी एसिड प्रोडक्ट विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। सो ये आ गया आपको समझ में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन अजम्पशन। We cannot always guarantee that 36 ATPs will only produce, और अगर ऐसा होने लग जाता ना तो इंसान क्या होता ना, गोलियां नाप करके मॉलिक्यूल दे, हाँ भाई इसको 100 मॉलिक्यूल दे दीजिए आज जिंदा रहने के लिए, बट इट इज नॉट सो। Our body have so many different type of activities going on and so many different type of substances are required, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आ गया आपका। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, लेट अस कंपेयर द फंक्शनिंग फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मैं करा चुका हूँ कल। फर्मेंटेशन आप जानते हैं, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको छोटी क्लासेस में भी कराया, फिर भी कर लेंगे अगर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है आज, ठीक है। लास्ट टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या होता है एम्फीबॉलिक पाथवे? हमने मेटाबॉलिज्म हमेशा पढ़ा, देयर मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉल। कैटाबॉलिज्म in which the large molecule is broken into the smaller molecule, anabolism in which the smaller molecule combine to make complex molecule. Now, right from the childhood, मैंने आपको बिगिनिंग में भी कहा, ये चैप्टर पढ़ाते समय अगर कल का वीडियो आप देखेंगे, मैंने आपसे ये कहा कि आपने आज तक रेस्पिरेशन के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उसको रोल करके थ्रो कर दीजिए डस्टबिन में, बिकॉज वी आर टॉट ऑल रॉन्ग। वी आर ऑलवेज टॉट दैट रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहाँ कौन सी गारंटी है कि भैया ग्लूकोज विल ऑलवेज फिनिश इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? ग्लूकोज कैन, any intermediate is made and that intermediate can be again used in synthesis of a more complex molecule. तो हमने इसको एम्फीबॉलिक कहा है। एम्फी क्या होता है? एम्फी मतलब टू, बॉलिक मतलब यहाँ रिएक्शन है। तो दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, वो कैटाबॉलिक भी हो सकती है, वो एनाबॉलिक भी हो सकती है। वी कैन नॉट गारंटी दैट रेस्पिरेशन विल ऑलवेज बी अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट कैन बी कैटाबॉलिक और इट कैन बी एनाबॉलिक और इट कैन बी both, and that type of processes are called amphibolic। आप देखते हैं अगले पेज पे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अगर आप अलग अलग तरह का सब्सटेंस यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कैन बी फैट, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट और इट कैन बी प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट वाला तो हमने पढ़ लिया, ग्लूकोज वाला बीच वाला, ठीक है, वेयर द कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज विल चेंज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डायएसिटोफॉस्फेट डैश 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 डैश, फाइनली पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड विल गो इनटू द क्रैब साइकिल इन द एसिटाइल कोएंजाइम एंड डैश डैश करके, ठीक है। दिस वी हैव स्टडीड सो फार। नाउ हैड वी यूज्ड फैट, तो फिर हमारी गिनती कैसे होती? फैट यूज करते तो फैट वुड हैव ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड फैटी एसिड वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। सो वो जो पूरे प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, वो फिनिश हो गया, बाईपास हो गया। द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज बाईपास हियर एंड
the fats are taking entry from acetyl coenzyme, whereas if we take amino acid, they will take entry from pyruvic acid. ठीक है, so that is why they will not be as efficient the glucose is, and that is why body prefer to use glucose. वो बॉडी ग्लूकोज को प्रेफर करती है, क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, मैं आपको 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। अगर ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन है, तो उसके बदले में हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर मैं 6 कार्बन वाला कोई एसिड बनाता हूँ तो ये हो जाएगा C5H11COOH। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 2, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर मैं फैटी एसिड लेता हूँ, एमिनो एसिड लेता हूँ, तो एमिनो एसिड भी ले सकता हूँ, एक सेंट्रल कार्बन रहेगा, एक COOH रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक NH2 रहेगा। NH2 तो एनर्जी देने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, तो क्योंकि हमको टोटल 1 और 2 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन होना है, तो C4H8 में यहाँ पे ले सकता हूँ। वैसे C4H8 तो ऐसा तो कोई एमिनो एसिड नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह रहे हैं। तो इसकी इतने सारे मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही, ठीक है। सो द एफिशिएंसी ऑफ दिस एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस विल बी लेस इन कंपेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, and that is why most commonly body is depending on, however energy will be produced more if we are using fatty acid, क्योंकि उसके अंदर बर्न होने वाली चीज कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है, डिपेंडिंग दैट यू हैव टू टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, जो कि जनरली हो नहीं पाता है। देन क्या होता है, बॉडी विल चेंज इनटू, मतलब स्विच ओवर टू द एनारोबिक प्रोसेस, एंड देन इट विल लीड टू द सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है। और दूसरी बात क्या देख रहे हो आप, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये जो 3 स्टेप अपन ने पढ़े हैं, इसको उल्टा भी कर सकता है बॉडी के, जितनी भी प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, रिवर्स कैन ऑल्सो गो। तो यहाँ पे क्या है, सपोज बॉडी नीडेड फैट, जो कि जनरली होता है, हमने अक्सर लेडीज को सुना है, आप किसी को चाय बना कर बोलो नहीं नहीं शक्कर मत डालना बेटा, क्यों, नहीं मतलब नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने मना किया, शुगर डायबिटीज नहीं होगी तब भी नहीं खा रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको डर है कि फैट हो जाएगा, चर्बी जम जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग आइसक्रीम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग मीठा नहीं खाते, तो वो क्यों नहीं खा रहे, देखिए द प्रोसेस क्या कह रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज विल चेंज इनटू डाइज एंड फाइनली किसमें चेंज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम, एंड इफ बॉडी डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ ग्लूकोज, देन बॉडी में चेंज दिस ग्लूकोज इनटू फैट। ये प्रोसेस को उल्टा चला देगी और फैटी एसिड, और फाइनली और वो जाके जांघों पे जम जाएगा, वो जाके कमर में जम जाएगा, वो हमारे चेस्ट में जम जाएगा, हमारे थाइज में और यहाँ पे हाथों में सब जगह जम जाएगा, ठीक है। सो बॉडी में एनी टाइम स्विच ओवर द एनी प्रोसेस, पायरुविक एसिड से वो प्रोटीन बना सकता है, एमिनो एसिड बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम कैन बी यूज्ड। सो बॉडी we cannot guarantee that the process starting from glucose will always end up into carbon dioxide and water, as we have studied right from till last period। आपने लास्ट पीरियड तक में आपके दिमाग में यही था कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे, अभी हम कह रहे हैं कैटाबॉलिक तो ही नहीं साबित, क्यों, क्योंकि दैट एसिटाइल कोएंजाइम और पायरुविक एसिड कैन एनी टाइम मे बी यूज्ड इन मेकिंग कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ठीक है। ये तो 2-3 चीज दिखा रही है बुक के अंदर, देयर मे बी मेनी अदर प्रोडक्ट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो यहाँ सिंथेसिस ब्रेकडाउन रिएक्शन हो सकती है, सिंथेसिस रिएक्शन भी हो सकती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। इज इट क्लियर, आपको बात समझ आ गई? मैंने आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बताई है। इससे पहले वाली चीज मैंने आपको अकाउंटिंग बताई है कि व्हाई इट इज एजम्पशन रखने पड़ेंगे हम आपको कई सारे, अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, एजम्पशन इज इंपॉर्टेंट, एम्फीबॉलिक पाथवे इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ गया हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या कहता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो किस चीज को बता रहा है, दैट इज हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सो RQ is the ratio of carbon dioxide evolved is to oxygen consumed. So for glucose it is 1. अगर आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 6 ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, so it will be 1. RQ for glucose is 6 CO2 upon 6 O2, so ये कट के 1 होगा। But if you take fats लेंगे तो क्या होगा? The oxygen required is so high
then carbon dioxide produced is very low. यहाँ पे दे रखा होगा शायद, कोई रिएक्शन दे रखी है, हाँ 145 and 102. So it has gone below, that is below 1, that is 0.7. और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, आर्ग्यू कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोड्यूस 2 बट ऑक्सीजन कंज्यूम 0. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ कंज्यूम हो रहा है, ठीक है. सो इन दैट केस इट गो टू इंफिनिटी, ठीक है. सो इट इज जस्ट फॉर द सेक, वो थोड़े होते हैं ना डेटा वाले, है ना. हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, दूसरा काउंटिंग कर रहा है कि यार इसने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड. अरे तो रिकॉर्ड क्या देख रहा है, मैच देख, मजे कर, वो वाले. तो रेस्पिरेशन में वो जो है कुछ लोग डेटा वेटा ले आते हैं, तो वो लोग ये इस तरह का काम करते हैं, ठीक है. तो आपको ये समझ आ गया, तो हमारी चैप्टर इज ओवर नाउ. आपके लिए एक काम है, दैट इज यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन, जो हमने 10th क्लास में करी थी. आपके पास नोट्स में पढ़े भी होंगे, ठीक है. और नहीं तो मेरी 10th की इसी वीडियो में आपको मिल भी जाएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल. माय दिस चैप्टर इज ओवर. टुमारो आई विल स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस एंड वो भी जल्दी खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि अब तो हम सोचते हैं कि आप क्लास